Hi guys, am I audible and visible to you now? Very good evening. Okay, चलिए start करते हैं सेशन को. So good evening guys, this is Ruhi, your friend, mentor, educator and guide at Academy, specialized in handling all your subjects for RBI, SEBI, NABARD and other regulatory body exams. So let's get started with today's current affairs quiz. Okay, so these are the top educators in the bank regulatory body exams handling multiple batches every month. Okay, so this is the list of educators who teach for RBI, NABARD, SEBI, JAP, CAP, PFRDA, SIDBI and even IRDI. So guys, if you are preparing for this examinations, you can enroll for the batch courses for RBI Grade B Phase 2. Followed by this, you have a separate batch course of mine which covers basic to advanced RBI Grade B preparation, covering all the subjects. And even if you are preparing for SEBI or PFRDA, you can join this. You can enroll for this batch. And there is one more batch for SEBI. Besides this, you will find lot of batches available on Unacademy for bank promotion exams as well. And yes guys, in case you are going to prepare on Unacademy, you can go for a combo subscription because you have offers running on bank plus bank regulatory subscription, okay, where you get access to 2 year subscription, additionally 6 months, 1 year subscription में 3 months additional, 6 month subscription पे 1 month additional. Okay, so I would suggest you to go for 1 or 2 year subscription as this category covers more than 10 examinations and the syllabus is very vast. Okay, so you can use this code Ruhi Live to avail a 10% discount and also a special mentorship and guidance from my end. Okay, I think everything is set and we should start with the session with the very first question on your screen. So are you guys ready? चलो start करते हैं. Manu Bhagar, in partnership with Olympic champion Jawad Foroughi of Iran, won the mixed air pistol gold in President's Cup shooting championship being held in which country? किस कंट्री में चैंपियनशिप हुई थी गाइस? पोलैंड में, इंग्लैंड में, यूके में या फिर यूएस में, जिसने मानु भाकर ने यहाँ पे गोल्ड जीता है? यस, प्लीज टाइप योर आंसर्स इन द चैट. पहला ही क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, करेक्टली आंसर पोलैंड एज योर करेक्ट आंसर गाइस. Yeah, you need to remember Wroclaw, पोलैंड में इस ओलंपिक चैंपियनशिप में मानु भाकर इन पार्टनरशिप विद जवाद फॉरूगी ऑफ ईरान, ठीक है. सो ये प्रेसिडेंट्स कप शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया है. Next, how many countries signed up to a sustainable agriculture action agenda at the conclusion of first week of COP26 climate summit? 27, 26, 25 या फिर 22. So इनमें से कितने कंट्रीज ने सस्टेनेबल एक्शन एग्रीकल्चर एक्शन एजेंडा के लिए साइन किया है पहले वीक में COP26 क्लाइमेट समिट के लिए? So it is 27 guys. Okay, so totally 27 countries have signed and India is one among these 27 countries to sign up sustainable agriculture action agenda. Okay, so you have to remember the venue can be asked. It is Glasgow. Okay, Glasgow is a city in Scotland where this particular agenda was signed and India is one among the 27 countries to sign this agriculture action agenda. Next. What was the rank of India? So India का rank बताना है out of 30 countries in the first edition of Global Drug Policy Index. Very important question guys. First edition रहा है इसीलिए important index है आपके सामने. Global Drug Policy Index में इंडिया का रैंकिंग कितना रहा है? हाय आशीष? Yes, 11, 18, 25 या 27? So guys, correct answer here is option B. क्यों आज क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या?
ओके 18th रैंक रहा इंडिया का आउट ऑफ 30 कंट्रीज, याद रखना है। एडिशन आपसे पूछा जा सकता है, पहला एडिशन रहा है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का, जो रिलीज किया गया था हार्म रिडक्शन कंसोर्शियम के द्वारा। एंड ये इंडेक्स में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल एंड यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 कंट्रीज रहे हैं ऑन ह्यूमन एंड हेल्थ ड्रिवन ड्रग पॉलिसीज। ओके, सो हियर द टॉप 5 कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं। And even the rank of India is out of how many countries? So 30 countries में इंडिया का रैंक 18 रहा है। So this is a list of top 5 and bottom 5 countries in front of you guys. So top 5 पे countries हमने देख लिए, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल एंड यूके। एंड बॉटम 5 में 26, 27, 28, 29, 30 पे ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, केन्या, इंडोनेशिया, उगांडा एंड ब्राजील रहा। When I speak about the bank exams, या तो आपको हाईएस्ट टॉपर का पूछ सकता है या फिर लीस्ट पोजीशन पूछ सकता है ब्राजील। बट इफ आई स्पीक अबाउट द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके का भी बन चुका है कि टॉप 5 या बॉटम 5 में कौन सी कंट्री रही है या नहीं रही है। सो ऑलवेज टू रिमेंबर रेगुलेटरी के लिए टॉप 5 और बॉटम 5 सारे कंट्रीज को एक बार से ध्यान में रख लो। Next, who is the author of the new book titled Modern India for Civil Services and Other Competitive Examination? अमिताभ घोष, चिदानंद राजखटा, पूनम दलाल दहिया या फिर अवतार सिंह भासिन? Yes guys, please share the link with all of your friends. So इसके ऑथर कौन रहे हैं? मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इस बुक के ऑथर रहे हैं पूनम दलाल दहिया। ओके, सो यस राहुल, करेक्ट आंसर? नो, एक्चुअली यू सेड बी, द आंसर वाज ऑप्शन सी, दैट इज पूनम दलाल दहिया। ओके, ऑथर रही है मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इस न्यू बुक की। अगला सवाल है, आरबीआई has launched its first global hackathon. Mark it as a sure short question for your examination, any one of your bank examination, banking 2021, blockchain 2021, Harbinger 2021 या फिर legal 2021। yes guys, एक काउंटर क्वेश्चन यहाँ से, विजेता को कितना प्राइस मिलेगा? so इस हैकेथॉन का नाम बताना है। very correctly answered चेतन, the answer here is Harbinger 2021, जिसमें RBI है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज अ हैकाथॉन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का ये हैकाथॉन है हार्बिंगर 2021। कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्राइस फॉर द विनर एंड द रनर अप इन दिस हैकाथॉन? चैट में टाइप करोगे कितना प्राइस है। 40 lakhs विनर को रहेगा, रनर अप के लिए इट इज 20 lakhs। आरबीआई इज ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन। ओके, सो यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो थीम है, Innovation for Transformation with the theme Smarter Digital Payments. So basically यहाँ पे hackathon में participants are invited to participate to identify and develop the solutions that they have the potential to make digital payment accessible to the underserved, enhance the ease of payment, user experience while strengthening the security of digital payment and promoting customer protection. इसका मतलब है कि hackathon में these solutions are invited from people. The participants can participate in this hackathon and provide solutions for digital payments, or even they can find out some hacks and suggest RBI, okay, for easy accessibility of digital payments and to make digital payments more transparent, more reliable, and to provide customer protection from any sort of fraud or risk involved in digital payment processing. Okay, so this is very important question guys, जहां से आपको याद रखना है कि यहाँ पर विनर का जो प्राइस है it is ₹40 lakhs, okay, and the runner up will be given ₹20 lakhs, ठीक है। so ये अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ये हैकाथॉन इजी एक्सेस, इनोवेटिव नॉन मोबाइल डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा फॉर स्मॉल टिकट कैश ट्रांजैक्शंस टू अ डिजिटल मोड। ओके, सो हियर द न्यूज़ सेज about the hackathon and the winner prizes announced
in this particular hackathon is important for your examination. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है 15 नवंबर 2021 से जो है स्टार्ट होगा. Next, with which country India agreed to strengthen defense and security partnership by enhancing intelligence and information sharing? UK, France, USA, Russia. Yeah, it was updated on the Telegram also today, right? So इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया ने अग्रीमेंट किया है डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, ओके, और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग को और भी एनहांस करने के लिए ये पार्टनरशिप जो है इंडिया का हुआ है फ्रांस के साथ. ओके, इट इज नॉट रशिया. इंडिया हैज असाइंड एन अग्रीमेंट विद फ्रांस. ओके, इंडिया और फ्रांस का एग्रीमेंट है. डिफेंस एंड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की ये पार्टनरशिप है. इंटेलिजेंस एनहांस करना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड म्यूचुअल कैपेबिलिटीज को और बढ़ावा देने के लिए, मिलिट्री ड्रिल्स को एंड न्यू इनिशिएटिव्स इन मैरीटाइम, स्पेस एंड साइबर डोमेन्स में और इनिशिएटिव्स बढ़ाने के लिए ये पार्टनरशिप इंडिया की और फ्रांस की हुई है. नेक्स्ट, IBM कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड द क्लाइंट इनोवेशन सेंटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. सो इनमें से किस सिटी में IBM कॉर्पोरेशन का क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च हुआ है? औरंगाबाद, भोपाल, देहरादून, मैसूर. यस गाइस, IBM कॉर्पोरेशन का क्लाइंट इनोवेशन सेंटर जो है मैसूर में लॉन्च किया गया है. एंड बेसिकली ये जो क्लाइंट इनोवेशन सेंटर है in Mysore, it has been launched with support from Karnataka Digital Economy Mission. ठीक है, सो यहाँ पे याद रखना है किसके असिस्टेंस, किसके सपोर्ट से, कर्नाटका इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी मिशन की सहायता से IBM कॉर्पोरेशन ने एक नया क्लाइंट इनोवेशन सेंटर मैसूर में लॉन्च किया है. अगला सवाल है, which date World Science Day for Peace and Development is celebrated every year? So to mark the importance of science, this particular day is observed when? 6 नवंबर, 7, 8 या फिर 10 नवंबर. Very correctly answered guys. Yes, ये दिन 10 नवंबर को मनाया जाता है. So yes, World Science Day for Peace and Development हर साल 10 नवंबर को मनाया जा रहा है to highlight the importance and role of science in society and to engage wider public in debates and emerging scientific issues. Okay, so all of you know the importance of this day. Okay, so 10 नवंबर याद रखना है. अगला सवाल यहाँ से, रोहित शर्मा has become the dash cricketer to score 3000 runs in men's T20s. So third, second या फिर fifth या फिर fourth बन चुके हैं. रोहित शर्मा 3000 रन स्कोर कर चुके हैं मेंस T20s में. इसी के साथ ये ऐसे तीसरे प्लेयर बन चुके हैं. ओके, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो इंडियन बैटर है रोहित शर्मा जिन्होंने 3000 रन का फीट अचीव किया है और इसी के साथ ये तीसरे रहे हैं. ठीक है, सो हु क्लिंच्ड द वुमेन्स डबल टाइटल इन WTT कॉन्टेंडर टूर्नामेंट इन लास्का, स्लोवेनिया? मनिका बत्रा, अर्चना गिरीश कामत, वांग गिरी एंड मनिका बत्रा, ली सिंग यो एंड अर्चना कामत, PV सिंधु एंड मनिका बत्रा. Very correctly answered by all of you. So women's double title का खिताब मनिका बत्रा एंड अर्चना गिरीश कामत ने जीता हुआ है. तो याद रखना है गाइस, ये जो टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था, इसका वेन्यू आपसे पूछा जा सकता है, लास्को, स्लोवेनिया. ओके, टेबल टेनिस इंडियन पेयर है मनिका बत्रा एंड अर्चना गिरीश कामत जिन्होंने वुमेन्स डबल्स में ये खिताब जीता है. ओके, द वेन्यू इज इंपॉर्टेंट हियर. Yeah. Next question. Junior has tied up with which of the following debit card issuer for pre-teens and teenagers? Teenagers के लिए और pre-teens के लिए जूनियर ने किस कंपनी किस डेबिट कार्ड इशुअर के साथ जो है पार्टनरशिप की है? रुपे, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो या फिर वीजा? So yes, there is a confusion.
which is correctly answered. Yeah, Chetan, Akshita, बिल्कुल सही. Rupe and you have Rupe and Junior. Okay, Junior and Rupe का ये tie up हुआ है. Children focused fintech है. Fintech मतलब फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी. ओके, जब कोई कंपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसे हम फिनटेक फर्म कहते हैं. एंड जूनियो एक ऐसा ही फिनटेक है जिसका पार्टनरशिप रुपे के साथ हुआ है, राइट. एंड इन्होंने स्मार्ट मल्टीपर्पज कार्ड लॉन्च किया है टीनेजर्स के लिए और प्री टीन्स के लिए. रुपे प्लेटफॉर्म पे ये कार्ड लॉन्च किया जा रहा है. अगला सवाल, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस is a global observance celebrated every year from. Yes guys, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहा है तो लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा. बिल्कुल सही. 9th of November to 14th of November इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस. ओके, सो साइंस वर्ल्ड साइंस डे भी हमने देखा, ठीक है. एंड यस, यहाँ पे जो है वीक, इंटरनेशनल वीक की बात हो रही है साइंस एंड पीस के लिए. 9 से 14 नवंबर के बीच ये वीक मनाया जाता है. अगला सवाल, हु हैज अपॉइंटेड द स्पेनियर्ड डैनियल डेल वॉल एज द हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूथ. यूथ्स के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं? हु हैज आई मीन कौन बने, ऑलरेडी दिया है. किसके द्वारा ये अपॉइंटमेंट हुई है? यूनिसेफ, यूनेस्को, IHRF दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन एंड UNCHR दैट इज यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. वेरी करेक्टली आंसर गाइस. द आंसर हियर इज ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. UNHRC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. ओके, सो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है स्पेनियर्ड डैनियल डेल वॉल. इनका नाम याद रखें. कई बार UNHRC इज अपॉइंटेड होम पूछा जा सकता है. सो इनको हाई रिप्रेजेंटेटिव बनाया है यूथ ड्यू टू हिज अचीवमेंट्स इन द थीमेटिक ईयर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट एंड यूथ पार्टिसिपेशन फॉर द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस के लिए यूथ एम्पावरमेंट एंड यूथ पार्टिसिपेशन में इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है जिसकी वजह से इनको ये हाई रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है. Who among this has been awarded ICC Players of the Month for October? Yes guys, it's a rapid fire. It takes hardly 20 to 25 minutes but it covers all possible questions and in fact some booster questions will also be discussed on Sunday in the special class. Okay, Sunday को सुबह 10 बजे 10 से 12 का मैराथन होगा स्पेशल क्लास पे अन अकेडमी पे. ओके, ये क्वेश्चंस इसके अलावा और भी क्वेश्चंस कोल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. आईसीसी प्लेयर्स का खिताब अक्टूबर के लिए आसिफ अली एंड लौरा जिलानी ने जीता है. वेरी करेक्ट ऑल ऑफ यू. Dash became the first Chinese woman astronaut to walk in space. Very important. First is always important for examination. इनमें से कौन है जो पहली चाइनीज महिला एस्ट्रोनॉट बनी है टू वॉक इन स्पेस? चायू दायू, आलाम, वांग यापिंग या फिर बजाई चू हुआ? यस गाइस, वेरी करेक्टली आंसर्ड. सौरभ, वांग यापिंग इज द करेक्ट आंसर. पहली चाइनीज महिला एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन द स्पेस इज वांग यापिंग, ठीक है. सो चाइना ने शिनजाओ 13 स्पेसशिप लॉन्च की थी अक्टूबर 16 के दिन and it has sent 3 astronauts on a 6-month mission to the under construction space station and it was expected to be ready by next year. And with this she has become the first Chinese woman astronaut to walk in space. Just remember her name or sometimes it might be asked Wang Yaping from which country has become, okay, the first astronaut to walk in space. So it's China. Which of the following cities selected UNESCO network to create cities? Srinagar, Bhopal, Dehradun, Imphal. Yes guys, इनमें से कौन सी सिटी
को चुना गया है यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज के लिए। सो क्रिएटिव सिटीज के लिए श्रीनगर को चुना गया है। वेरी गुड इवनिंग रितु। यस, वेरी करेक्टली आंसर्ड। श्रीनगर द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 49 सिटीज में रहा है जिसको चुना गया है वर्ल्ड वाइड टू जॉइन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN। ओके, सो ये एक क्वेश्चन अलग तरीके से भी बन सकता है किसका ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है जिसके लिए श्रीनगर को चुना गया है, तो ये यूनेस्को का है। नेक्स्ट, रिसेंटली तारक सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस फील्ड से रिलेट करते थे? एक्टर, ऑथर, क्रिकेट कोच या फिर पॉलिटिक्स? यस गाइस, तारक सिन्हा ऑब्ituary से सवाल है। सो तारक सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये एक क्रिकेट कोच रह चुके हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमिनेंट क्रिकेट कोच एंड द्रोणाचार्य अवार्डी भी रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है न्यू दिल्ली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। सो जब भी ऑब्ituary का सवाल बने तो या द प्रोफेशन इज ऑलवेज आस्क्ड, ओके, द रीजन इज नेवर आस्क्ड और neither the venue is asked in your examination। वेन्यू की भी जरूरत नहीं है। यस, कौन से अवार्डी रह चुके हैं कई बार ये भी पूछा जाता है। सो द्रोणाचार्य अवार्डी भी ये रहे हैं। अगला सवाल है स्टैटिक्स है। फ्रांस का कैपिटल आपको बताना है लंदन, पेरिस, जेनेवा एंड वाशिंगटन। करेंसी भी कमेंट में टाइप करेंगे। यस गाइस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। करेंसीज यहाँ पे यूरो और CFP फ्रैंक भी चलती है। ठीक है, पेरिस इज द कैपिटल। एंड नेक्स्ट क्या स्टैटिक इज पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो, नैरोबी, लंदन या फिर लीरा। जितने भी क्वेश्चंस देखो, जब भी स्टैटिक पूछा जाता है, यू डोंट हैव टू लर्न स्टैटिक कवर टू कवर। जो भी कंट्रीज न्यूज में रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में रहे हैं, उनसे ही स्टैटिक आपको बनता है। सो पोलैंड एंड फ्रांस न्यूज में रहे हैं। सो यस, यहाँ पे पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो एंड पोलिश ज़्लोटी। ओके, ज़्लोटी इज द करेंसी। दैट्स ऑल गाइस, ये आपके क्वेश्चंस आज के समाप्त हुए एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड सेशन को लाइक करना मत भूलें। सी यू एट द सेम टाइम टुमारो 9 PM on this channel. Yes, if you haven't subscribed, please subscribe to the channel, and in case you have any doubt, please write in the comments below. Bye bye. Thank you. Have a nice time. God bless you.